Good morning, students. Myself, Jyoti, BSc Part Second Year English Medium, and as you know, we have started Zoology paper second, and in this paper, the name of the paper is the Animal Physiology, and in this paper we have completed the first unit. It means the second paper of Zoology has completed the first unit, and in the first unit we completed some of the system of physiology. It means we have completed the digestive system, respiratory system, circulatory system, as well as in a expiratory system. From today we started a new paper of Zoology, and we started the Zoology paper third. From today we started the third paper of Zoology. The name of this paper is the Immunology, Immunology, Microbiology, Microbiology and Biotechnology. So this is your name of the paper of third. The name of the third paper is the Immunology, Microbiology and Biotechnology. The complete name of this paper is the. As you know that our syllabus has divided into the 3 units. In Zoology, that entire syllabus of the subject is divided into 3 units. So in this book, that all 3 units are there. The Immunology is the first unit, the second unit is the Microbiology, and the third unit is the Biotechnology. So these are the 3 different units. About the micrology you have done the study in first year also. So from today we started our first unit. The name of the first unit is the Immunology. Okay, so this is your third paper. So from today we started the third paper of Zoology. The name of the paper is the Immunology, Microbiology and Biotechnology. And from today we started the first unit of this paper, and the first unit is the Immunology. Okay? So the today our topic is the immunology, either the introduction of the immunology, what is the immunity. Now first of all, if we are talking about the immunity, what is the meaning of that? We have to describe the immunology. First of all, we have to know about what is the immunity. We can say the immunity is the defense system of our body. We can say the immunity is the डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. कैसे कि अगर हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, सो द इम्यूनिटी इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का क्या बना रही है? इट्स मेकिंग द डिफेंस सिस्टम. अच्छा, डिफेंस सिस्टम का मीनिंग क्या है, क्या होता है? एज यू नो दैट फ्रॉम द जो हमारे बॉर्डर है या हमारी पूरी जो अगर हमारी कंट्री है, द कंट्री इज हैविंग अ डिफेंस सिस्टम. And in a defense system the armies are there, या हम कह सकते हैं that air force are there,
जो मतलब ये क्या करती है, आर्मी है, द पुलिस, या हम कह सकते हैं एयरफोर्स है, ये सारे हमारे क्या कर रहे हैं, दैट ऑल आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द फॉरेन, कि जो फॉरेन पर्सन्स होते हैं दे प्रोटेक्टिंग अस, कि हमारी जो कंट्री है उसकी प्रोटेक्शंस करते हैं द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर के लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं दैट द एनिमीज, दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द एनिमीज। कहाँ से कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री के आउटसाइडर हैं या हमारे जो एनिमीज होते हैं उन एनिमीज से दे प्रोटेक्ट द कंट्री, एंड सो दे नो दे फॉर्म द डिफेंस सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, सो द इम्यूनिटी इज ऑल्सो द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। ये इम्यूनिटी क्या कर रही है, दिस इम्यूनिटी इज मेकिंग अस, क्या कर रही है, इट्स प्रिवेंट अस from the foreign genes, either a foreign bacteria, microorganism, कि जो इम्यूनिटी है इट्स प्रोटेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द आउटसाइडर, कि हमारी बॉडी की जो आउटसाइडर है, जो हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी के पार्ट्स नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी इन अ डिफेंस सिस्टम इट्स मेड बाय द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, कि हम जनरली अगर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं इन इम्यूनिटी, देयर हैज अ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंड दीज एंटीजन एंटीबॉडीज आर वर्किंग एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है इट्स मेड बाय द एंटीजन एंड दीज एंटीबॉडीज, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईच ऑफ द सेल, each of the cell, the outsider of the cell, there has a antigens। हमने जब ब्लड सर्कुलेशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था, that time I told you that they each of the cells having a antigens। So अब ये एंटीजेंस का वर्क क्या है, तो एंटीजन एंटीबॉडीज वर्क कैसे करते हैं। सपोज करो कि अब ये तो क्या है, हमारी सेल्स का एक तरीके से जो एंटीजेंस हैं दे आर वर्किंग एज अ नेम प्लेट। जो एंटीजेंस हैं दोज एंटीजेंस फाउंड इनसाइड ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं द ईच ऑफ द सेल हैव देयर ऑन एंटीजेंस, कि हमारे जो बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर क्या होगी, सेल होगी, और सेल पर क्या होंगे, देयर हैज अ एंटीजेंस। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था हमने बात करी थी। आरबीसी के एंटीजेंस की बात अलग है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अ बॉडी। अगर बात करो, अगर मैं मेरी बॉडी की बात कर रही हूँ, सो दैट मीन्स जो मेरी बॉडी में एंटीजेंस हैं दोज आर डिफर फ्रॉम द आउटसाइडर, कि वो जो आउटसाइडर के जो भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में जो एंटीजेंस प्रेजेंट है सेल के ऊपर एंटीजेंस है उनसे डिफर है। सो दोज एंटीजन्स आर फाउंड इनसाइड ऑफ माई बॉडी सेल, कि जो एंटीजन मेरी बॉडी में मेरी सेल पे प्रेजेंट्स है दे आर फॉर्मिंग द नेम प्लेट ऑफ माई, वो क्या कर रहे हैं, मेरी बॉडी का नेम प्लेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब सपोज करो कोई आउटसाइडर कोई एंटीजन मेरी बॉडी में आगा, ठीक है, कि आउटसाइडर कोई फॉरेन एंटीजन मेरी बॉडी में आया, तो ये एंटीजन जो मेरी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं दे रिकॉग्नाइज दैट, उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये तो हमारी बॉडी का नहीं है, ये आउटसाइडर है, एंड दैट दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, उसके अगेंस्ट क्या फॉर्म करते हैं, दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, एंड ड्यू टू दिस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन दे फॉर्म द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी का क्या कर रहा है, दे फॉर्मिंग द डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर, और आउटसाइडर्स में भी दैट सम ऑफ द माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, वायरस, पैथोजेंस आर देयर, सो दे प्रिवेंट अस फ्रॉम दीज ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आया कि इम्यूनिटी क्या कर रहा है, इट्स मेकिंग आवर डिफेंस सिस्टम, या हम कह सकते हैं इट्स मेक द आवर प्रोटेक्टिंग सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का फॉर्म बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट
Write down the heading of this chapter, the immune system and the introduction. जो आपका चैप्टर नेम है दैट इज द इम्यून सिस्टम, आइदर इम्यूनोलॉजी एंड इट्स इंट्रोडक्शन. हेडिंग क्या होगी? दैट इज द इम्यूनोलॉजी एंड इट्स इंट्रोडक्शन. Some of the students are having problem to make their notes, so मैं आपको notes बनवाना स्टार्ट कर रही हूँ, but you have to write fast. ऐसे नहीं कहना कि मैम बहुत फास्ट हो रहा है. You have to write, otherwise your syllabus will not be completed. Now write the immunity. The immunity is making the immunity is make the defense system of an organism body. So the immune system, the immunity is make the defense system of a organism. Immunity is the defense system of organism body. The immunity is the capability of multicellular organism to resist harmful microorganisms. The immunity is derived from the Latin word. The immunity derived from the Latin word immunitas. Immunitas, the meaning of this word is free of burden. Note down fast.
So the immune system protect us from infection through various line of defense. ठीक है. So now this is the immunity. What is the immunology? It means the study of, if we are talking about the immunology, so the immunology is the study of immune system. So it is the important branch of biology, and immunology is the study of immune system. So now, the immunology is the study of immune system, it's a very important branch of medical and biological. Very important branch of medical and biological. The immunology is a varied, लिखना है ये आपको. Immunology is varied and divided into sub branches, So the immunology is also having many branches. Immunochemistry. The branch of immunology are as immunochemistry, the second branch of this is the tumor immunology, immunology,
Next is the transplantation immunology. Transplantation immunology. The aging immunology. It means many of branches are there in the immunology. So the immunology now write the next topic is the history of immunology. Write the heading history of immunology. Some of the short questions are coming from this area. The one liner, the name of the scientist, the name of the vaccination scientist. So write the heading history of immunology. नाउ देखो, अब जब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फर्स्टली अगर हम बात करते हैं इन इम्यूनोलॉजी, द नेम ऑफ द लुई पास्चर, कि जो लुई पास्चर है, ही गिव्स द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, कि उसने क्या किया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी. एंड उसने जो लुई पास्चर की अगर हम बात करते हैं, ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन, कि उसने जो माइक्रोब्स से उन माइक्रोब्स की स्टडी की एंड देन ही गिव्स द पास्चराइजेशन. उसने बियर या हम कह सकते हैं जो एक तरीके से बिवरेजेस थे, उन बिवरेजेस के फर्मेंटेशन जो प्रोसेस था उसका भी स्टडी किया था. तो अगर हम बात करते हैं इन द इम्यूनोलॉजी एस्पेक्ट, इम्यूनोलॉजी के अगर एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं, सो मैनी ऑफ द स्टडीज आर डन बाय द लुई पास्चर. But the father of immunology is known as the Edward Jenner. ठीक है, कि उसमें अगर हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो लुई पास्चर हैं, दैट लुई पास्चर गिव मैनी ऑफ एक्सपेरिमेंट. उसने जो माइक्रोब्स थे, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की, तो डिफेंस सिस्टम हमारा किनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, अगेंस्ट टू द पैथोजेंस. एंड पैथोजेंस आर द माइक्रोब्स, कि जो माइक्रोब्स होते हैं वही क्या है, पैथोजेंस है. और जो माइक्रोब्स हैं उन पर मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली जो स्टडीज अगर की है, द स्टडीज गिवन बाय द लुई पास्चर. बट द एडवर्ड जेनर इज द, अगर हम कह सकते हैं, ही इज द, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से केमिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था, दे गिव द वैक्सीनेशन प्रोसेस, कि उन्होंने क्या किया था, दे डिस्कवर द वैक्सीनेशन. एंड ड्यू टू देयर प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज नोन बाय द एडवर्ड जेनर. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ही वॉज द एडवर्ड जेनर. ठीक है, लिखो, द मोस्ट हिस्टोरिकल accounts is credited to Edward Jenner. He developed the first immunization process. First immunization
process in 1796 Edward Jenner gave the concept of vaccination due to this the Edward Jenner was known as father of immunology. So the father of immunology is the Edward Jenner. The Louis Pasteur developed his germ theory of disease he created the interest in fermentations of wine and beer. He developed the process of pasteurization He also developed the vaccine against rabies and swine erysipelas.
ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।